دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ نادرگام پاکستان اس وقت فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اب مشکل فیصلے لینا ہوں گے کیونکہ باجوہ ڈاکٹرین نے اس پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ 6% سے ترقی کرتا ملک آج اس کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 0% ہو چکی ہے اور منفی میں جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ اور ابھی تک عمران خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ اداروں میں کام کر رہی ہے۔ باجوہ کی باقیات جس میں ڈرٹی ہیری اور بہت سارے ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کر انہوں نے کھڑا کیا، اور ابھی تک عمران خان کے خلاف وہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب نئے آرمی چیف جنرل آصم منیر کے کندھوں پر بوجھ مزید بڑھ چکا ہے اور کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ پاکستان کے لیے اس وقت ڈیسائسو جو سچویشن بن چکی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ جی ایچ کیو کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب نے عمران خان کے حق میں جو فیصلہ سنایا ہے اور جی ایچ کیو کو ٹھوک کر جواب دیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے سعودی عرب نے جناب ایوان یہ کہہ دیا ہے کہ بس بہت ہو چکا ہے، انف از انف، اب پاکستان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف عرب ممالک نے طبلِ جنگ بجا کر رکھ دیا ہے اور جناب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے گرد بھی اس وقت گھیرا مزید تنگ ہو چکا ہے۔ دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو قتل کرنے کی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان پر حملے ہوئے، ڈرٹی ہیری کا نام سامنے آیا اور بہت سارے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شوکت خانم میں جناب ان کو زہر دینے کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں۔ تو بی بی سی کو انٹرویو نے اس وقت سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور عمران خان صاحب نے طاقتوروں کو مزید آج ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہے جو آج عمران خان صاحب نے ایک خاتون اینکر کو دیا ہے، اس حوالے سے بھی بڑی انسائیڈ نیوز ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ جنرل آصم منیر نے پاکستان کے آرمی چیف نے کس طرح سے الیکشن کے ڈنکے بجا دیے ہیں اور حکومت کو دو ٹوک پیغام مل چکا ہے۔ اس وقت بیک ڈورز پر کیا چل رہا ہے، جی ایچ کیو میں اس وقت کیا کھلبلی ہے اور بالخصوص زمان پارک جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت پنڈی جو ہے وہ مرکز نہیں رہا، اب جناب جو فیصلوں کا مرکز ہے وہ زمان پارک بن چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ نادرگام مریم نواز صاحبہ نے 22 جنوری کو وطن واپس لوٹنا تھا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان سے کچھ اہم لیگی رہنما جو ہیں وہ لندن جائیں گے اور مریم نواز جو ہیں وطن واپس نہیں آئیں گی اور ان کا یہ جو دورہ ہے منسوخ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے شریف خاندان نے جب اقتدار پاکستان میں کیا تو پاکستان میں رہے، لیکن جب اقتدار سے نکلے تو کبھی NRO-1 لے کر پرویز مشرف سے سعودی عرب چلے گئے، تو کبھی جناب لندن کی سیریں ہوتی ہیں۔ پاکستان نہیں آ سکتا یہ بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے فرار ہونے والا، لیکن جنیوا ضرور جا سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ ضرور جا سکتا ہے، امریکہ ضرور جا سکتا ہے، سرجریاں ضرور ہو سکتی ہیں، وہاں پر واک ضرور کر سکتا ہے۔ تو جناب رانا ثناء اللہ نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ان کا بیانیہ جو تبدیل ہوگا، اب یہ عمران خان صاحب، جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید، ثاقب نثار، ان چاروں کے اوپر پاکستان کا جو گند ہے وہ جو معاشیت کے حوالے سے کہ یہ سارے کا پورا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ اب یہ جناب کیپٹن صفدر جو کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ ہمارے استاد ہیں اور اب یہ اپنے ابو کے خلاف جا کر جناب مقدمہ درج کروانا جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، تو اپنے باپ کے خلاف جا کر یہ بیانیہ بنائیں گے اور بیانیہ بنا کر یہ الیکشن میں اس کو جو ہے وہ ہائپ دینے کی کوشش کریں گے۔ اب جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ذرا سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ لندن سے اس وقت پاکستان مشرف نواز نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے غور شروع کر دیا ہے۔ یہ غور و فکر جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے دیکھ رہا ہوں اور ابھی تک نواز شریف کی وطن واپسی نہیں ہوئی ہے۔ مریم نواز نے وطن واپسی کے لیے بتایا کہ وطن واپسی کی تاریخ فائنل ہوتے ہی بتا دوں گی۔ جیو نیوز کے مطابق پاکستان مشرف نواز کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں حسین نواز کے دفتر میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اب اجلاس میں جناب سینئر نائب صدر مریم نواز، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور جاوید لطیف اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اب بریفنگ کس کو دی جا رہی ہے؟ نواز شریف کو دی جا رہی ہے، ایک گھوڑے کو دی جا رہی ہے جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے۔ اور اجلاس میں قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق غور کیا گیا اور چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے کہا کہ جناب وطن واپسی جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی، لیکن مریم نواز جو ہیں وہ پہلے وطن واپس آئیں گی۔ اور یہ کیپٹن صفدر جو ہیں
उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जो हैं उनके मार्शल लॉ ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब जनरल फैज हमीद जो कि उनके उस्ताद हैं कैप्टन सफदर के, उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कौन सी हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आई, पीडीएम की हाजिर हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बूट पॉलिश की है, डिग्गी में मुलाकातें की और इन्हीं को जो है वो फायदा मिला और NRO2 इनको दिया गया। अब जनाब एक और खबर है कि जो इमरान खान साहब जो हैं उनके 70 के करीब इस्तीफे मंजूर होने जा रहे हैं। पहले 35 किए गए, अब खबर आ रही है कि 25 से 30 इस्तीफे जो हैं वो मजीद जो हैं उनको मंजूर किया जाएगा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। खान साहब का खौफ जो है वो इनके दिलों में घुस चुका है और इमरान खान साहब चाहे 35 या 70 हल्कों से इलेक्शन लड़े, हमारी तरफ से आज़ाद हैं। कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, PDM अक्टूबर में आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। 2 माह के लिए इलेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं है। 2 माह में इन्होंने जो तीर मारने हैं वो मार लेंगे। पाकिस्तान को माशी सूरत हाल आपके सामने है कि मजीद इसको दिवालिया किया जाएगा कि 6% से चलता मुल्क, अब जनरल बाजवा ने मुल्क पे शबखून मारा और फिर पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो आपके सामने है। तो जनाब अब इमरान खान साहब ने इनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, पहले असम्बलियां तोड़ दी इनकी ख्वाहिश के ऊपर, फिर इनकी ख्वाहिश के ऊपर कौमी असम्बली में वापसी भी इन्होंने की है। तो PDM ये नहीं चाहती कि खान साहब जो है इनको इलेक्शन में धकेलें, लेकिन खान साहब रंदा फिर रहे हैं और इनको घसीट के इलेक्शन में जा रहे हैं। और लेकिन ये विकटें उठाकर भागे कि नहीं जी मैं तो इलेक्शन तो नहीं आना, क्योंकि जनाब इनके पास बयानियां नहीं है, कारकर्दगी नहीं है और जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो इजाजुल हक साहब ताकतवरों के बड़े करीब हैं और उनके कासिद भी रह चुके हैं, इमरान खान साहब को अपना पैगाम भी पहुंचाते हैं GHQ का। तो जनाब इजाजुल हक साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को इस माह के आखिर में नाअहल किया जाएगा और इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये तैयारियां हो रही हैं इस वक्त बैकडोर्स के ऊपर। तो जनरल आसिम मुनीर ने इलेक्शन के डंके बजा दिए हैं और हुकूमत को जो 2 टॉप पैगाम मिला गया है बैकडोर्स के ऊपर वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए नादरखान गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से सनतकारों की मुलाकात हुई, वो फूट कर रोना शुरू हो गई कि जनाब माशी सूरत हाल जो बड़ी खराब है, हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में डॉलर के जो एक्चुअल प्राइस है हफीज पाशा के मुताबिक बहुत बड़े माशदान हैं, इनका नाम भी सामने आ रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। तो जनाब ये कह रहे हैं कि 295 रुपए पाकिस्तान के जो डॉलर का एक्चुअल रेट है, हालांकि सरकारी सतह के ऊपर 230 रुपए है और IMF के साथ अगर डील हो जाती है तो जाहिर है महंगाई भी बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 100 से 150 रुपए तक बढ़ सकती हैं, बिजली का फी यूनिट 100 रुपए तक जा सकता है और फिर 75% गैस भी महंगी होगी। तो जनाब जो लाहौर का म्यू हॉस्पिटल है वहां पर जो 12 वार्ड्स हैं ऑपरेशन थिएटर हैं वो उनको बंद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो IMF के साथ डील नहीं करती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि फरवरी में हम बिजली भी महंगी करेंगे, गैस भी महंगी करेंगे और हम मुश्किल तरीन फैसले लेंगे। अब क्या PDM जो है वो इस बयानी के साथ इलेक्शन में जाएगी जो पंजाब और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं? तो इसके लिए ये कोशिशें हो रही हैं कि तकरीबन 6 माह से लेकर 1 साल तक सूबों के इलेक्शन को भी डिले किया जा सकता है, सूबों में मुआशी इमरजेंसी को नाफिज किया जा सकता है। ये फिर गवर्नर राज की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब जनाब जो IRIS का सर्वे सामने आया है, IRIS का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा क्रेडिबल इदारा इसको समझा जाता है। तो इनके मुताबिक 71% पाकिस्तानियों ने यह कहा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं और 23% पाकिस्तानी कहते हैं कि इलेक्शन को अपने वक्त पर होना चाहिए। ये 23% भी इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अगर 2 से 4 महीने पाकिस्तान के इलेक्शन में रह चुके हैं तो ज्यादा दूर जो है वो काम नहीं रहा। शब्बाज जरदारी साहब ने ये कहा है कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जनाब ये भी ताकतवरों के बड़े करीब हैं तो ये पैगाम पहुंचाया गया है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, इस ईद के बाद इलेक्शन को फौरी तौर पर जो है वो मुनक्किद करवाया जाएगा। अब आ जाए कि सऊदी अरब ने कैसे ठोकर जवाब दिया GHQ को और सऊदी शहजादे ने इमरान खान के हक में इस वक्त फैसला सुना दिया है। जब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जनाब सऊदी अरब के दौरे पर थे तो उस वक्त मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि जनाब अरब ममालिक ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे, हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपना किरदार अदा जरूर करेंगे, लेकिन आप भी तो जनाब कुछ करेंगे। आप भीख मांगने आ जाते हैं कि 5 अरब दे दें, 2 अरब दे दें, सरमायाकारी कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। और मैंने आपको बताया था कि अरब ममालिक ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में लाएं और या तो टेक्नोक्रेट्स आ जाएं 3 साल के लिए वो इस हुकूमत को संभालें या फिर पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शंस करवाए जाएं जिससे स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, हम उनके साथ मुआहदे करेंगे, हम इनको जो है वो कर्ज देंगे। ऐसा नहीं चलेगा, हम इस PDM की हुकूमत को कर्ज नहीं दे सकते, इसको तो उनकी अवाम तस्लीम नहीं कर रही, हम किस तरह से इनके ऊपर इत्तेमाद कर सकते हैं। पाकिस्तान अबाउट टू डिफॉल्ट है तो इनके पास क्या सरमाया है कि हमारा कर्ज जो है वो दोबारा वापस कर सकेंगे। तो ये
खबर मैंने आपको दी थी। और अगर IMF डील करता है तो अरब ममालिक पाकिस्तान को पैसा देंगे, अगर IMF डील नहीं करता तो डेफिनेटली पाकिस्तान को पैसा जो है वो अब नहीं मिलेगा। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली अमदाद के लिए कुछ शराइत जो हैं वो आयद कर दी हैं, और ये कहा गया है कि ग्रांट डिपॉजिट और सरमायाकारी को माशी इस्लाहात से मशरूत कर दिया है। और इस हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का मंसूबा है। इसके साथ पाकिस्तान को दिए गए डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ा चुके हैं, और जबकि तेल और दीगर सहूलतें दे रहे हैं, तहम पाकिस्तान को भी जवाब में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब गैर मशरूत ग्रांट्स का तरीका बदल रहा है। सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है, इसलिए जो ममालिक हमसे इमदाद लेते हैं तो उन्हें भी ये करना होगा, और टैक्स का निज़ाम में इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की मदद जारी रहेगी, लेकिन अभी उन्हें भी चाहिए कि मुआशी इस्लाहात करें। अब जनाब, मीडिया रिपोर्ट्स भी आपके सामने मैंने रखी थी कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर के जो हैं वो प्रोजेक्ट के लोन जो है मुअख्खर कर दिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जनाब ईमान, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है, और अब इलेक्शन होना जरूरी है, स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाएगी, और ये हाथ पर हाथ रखकर जो एस्टैब्लिशमेंट आए रोज पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करती है, ये शब खून जो है वो रोकने चाहिए। अब जनरल आसिम मुनीर के लिए फैसला कुन और डिसाइसिव मोमेंट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और जनाब ईमान, अब जो खबर है उस तरफ आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह से कत्ल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब जो BBC को इंटरव्यू दिया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। जरा उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। देखें, खान साहब जो हैं वो आजकल इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया को दिए जा रहे हैं, बड़ा अहम हो चुका है। और इससे पहले डर्टी हैरी ने को ये टास्क दिया गया था मुबैना तौर पर कि 4 से 5 दिन के अंदर खान साहब का धरना जो है उसको ख़त्म किया जाए, और 5वें दिन इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। और जनाब, ये हमला भी हुआ, और फिर जब खान साहब शौकत खानों में थे तो उस वक्त भी मुबैना तौर पर कुछ 1-2 अहम शख्सियत जो हैं वो शौकत खानों में पकड़ी गई थी। मुश्तबा अफराद थे। बताया जा रहा था कि वो उन डॉक्टर्स तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जो जनाब इमरान खान साहब को दवाइयाँ वहाँ पर दे रहे थे, इमरान खान साहब की देखभाल कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कभी FIA का मुलाजिम बताया, तो कोई कहता था कि जनाब मैं सरगोदा से हूं, कोई कहता था मैं लाड़काना से हूं, कोई कहता था मैं काड़ा से हूं। तो यह सारी सूरत हाल थी, और खान साहब जो हैं उनको जनाब उनके गिर्द ये शिकंजा तंग हुआ। तो अब BBC को जो इंटरव्यू दिया गया है, और ये कासिम अली शाह साहब के हवाले से भी खबर आपको दे देता हूं। कल मैंने आपको बताया भी था कि जब कासिम अली शाह साहब ने खान साहब से एक मुलाकात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि खान साहब को ये किताब जो है वो सुंघाई जाए। अब इसमें पता नहीं कौन सी उनका जो करिश्मा था कि खान साहब को किताब सुंघानी है, तो उसके बाद भी बड़े शक व शुबहात जो हैं पैदा हुए हैं। तो जनाब, BBC को जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि उन पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले खान साहब ने इस इदारों में जो बैठी गंदी मछलियां थी मेजर फैसल नसीर के ऊपर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि खान साहब इन्होंने मेरे पर हमला करवाया, लेकिन अभी तक तहकीकात जो है वो नहीं हो रही। अब खान साहब किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल बाजवा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो ये काम कर रहे हैं। खान साहब को अब यहां पर खुल्लम खुल्ला बताना होगा, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे, बुलेट प्रूफ शीशे का इस्तेमाल करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और वो जहां भी जाएंगे, क्राउड में जाएंगे, धरनों में जाएंगे, जलसों में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वो अब जनाब प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टिव मेजर्स लेंगे। उनकी जान को शदीद खतरा है, और उन्होंने कहा है कि अगर ये हुकूमत रही तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। ये बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, और मुझे तो ये लगता है कि खान साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और उनके लिए एक बयानिया बन जाए, और जनाब वो अगली हुकूमत बनाए। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।